लास्ट वीडियो में हमने दो सबसे ज़रूरी बातें देखी थी। एक हैबिट्स जो हमारा माइंड बनाता है और दूसरी हमारे माइंड को गुड एवं बैड हैबिट्स के बीच क्या अंतर होता है वह मालूम नहीं होता। उसे जो बात और कार्य अच्छा लगता है उसको ही बारंबार करता रहता है। पिछले 100 साल में मनुष्य के मन और उसके बर्ताव को समझते हुए मॉडर्न साइकोलॉजी ने कई सारी तरक्की हासिल की है और पिछले 30 सालों से साइकोलॉजी ने एक नया मोड़ लिया है जिसमें सिर्फ मनुष्य के मन के बर्ताव के बारे में बात नहीं करते बल्कि उसके साथ जुड़े इमोशंस, फीलिंग्स और इंटेलिजेंस इन सभी के बारे में बहुत ही अलग अंदाज में रिसर्च एवं एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसको आज कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोलॉजी कहते हैं यानी कि CBP कहते हैं। जिसमें यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर साइकोलॉजी में पहले की तरह चूहे, बंदर, बिल्ली या फिर चिंपांजी पर एक्सपेरिमेंट नहीं होते, क्योंकि इन सभी के अंदर इमोशंस, फीलिंग्स और इंटेलिजेंस का बॉन्डिंग मनुष्य जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसलिए CBP में मनुष्य के बर्ताव के पीछे जिम्मेदार इमोशंस एवं फीलिंग्स पर सबसे ज़्यादा रिसर्च एवं एक्सपेरिमेंट होता है, जैसा कि मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। यह एक्सपेरिमेंट कुछ बच्चों पर सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट वॉल्टर मिशेल ने 1972 में किया और उसके बाद आगे चलकर यह एक्सपेरिमेंट खूब पॉपुलर बना और कई सारी जगह पर इसका प्रयोग होता रहा। इस एक्सपेरिमेंट में एक बच्चे को एक कमरे में बिठाकर मार्शमैलो दिया गया और साथ में उसको यह भी कहा जाता है कि अगर आप इसको जब तक मैं वापस न लौटूं तब तक नहीं खाओगे तो आपको दूसरा मार्शमैलो खाने को मिलेगा। और इस तरह से कई सारे बच्चों पर यह प्रयोग किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे वॉल्टर मिशेल का पर्पस सेल्फ कंट्रोल के बारे में था। जिन बच्चों ने दूसरे मार्शमैलो तक सब्र रखते हुए अपनी इच्छा पर काबू रखा, उन बच्चों का लाइफ में सफल होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि बचपन से उनके दिमाग में सेल्फ कंट्रोल नाम की पैटर्न बनने लगती है और ऐसे सेल्फ कंट्रोल करने से बैड हैबिट्स पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। And what the implications of self-control are for their lives as they grow up. Self-control, which used to be called willpower, is obviously terribly important. It's been an issue for us ever since Adam and Eve lost paradise because they couldn't resist the temptation of the serpent and the apple. What I developed when I started studying the problem of self-control is a measure that's now called the marshmallow test. Actually, we very often use things that aren't marshmallows. They can be M&Ms, they can be Oreo cookies. It's whatever the child picks from a set of assorted goodies that we have available for her or for him. And what we find is that when the children are given a choice between having two of their very, very favorite things, like 2 Oreo cookies or 2 marshmallows, that they can have if they wait by themselves until the researcher comes back to the room, which can be as long as 20 minutes. If they do that, they get the 2 things that they've been waiting for. But if they want to, at any time, they can ring the bell or start eating one of those cookies or whatever it is that they're waiting for, and then they don't get the 2 preferred objects. And what we found in many studies is that the choices they make have very serious connections to how their lives work out, in the sense that kids who are able to self-regulate, to delay gratification by the time they're 4 or 5 or 6 years old, have a much better chance of doing well at school, have a much better chance of thriving as adolescents and moving on in life. But that's only the start of the story, because far more important is the discovery that we made, which is that willpower and self-control are cognitive skills which we've been able to identify, which are quite easily teachable, not only to children, but to adults. And the reason that I've written a popular book on this subject is because I think there are very simple strategies that are available to all of us that can enhance our ability to regulate our emotions, to regulate our temptations, and to allow us to take future consequences into account. The implications of this are particularly important for education.
And one of the places in which I've been very happy to see the use of the methods and ideas that come out of the work on self-control are in the KIPP schools, Knowledge is Power programs that are all over the United States now, that have been developed by people to really help kids who are living under conditions of high stress and in high poverty, toxic poverty environments, to have a better chance to make the most of their lives. To see kids learning these self-control skills in these schools has been a wonderful experience for me, and I think that there are lessons to be learned by teachers throughout the world for how to help young children, who are living particularly under conditions of high poverty and high stress, to develop the trust expectations and the cognitive skills that they need to become more oriented to the future and to be able to make choices that allow them to make the most of their lives. ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट मनुष्य पर किए गए हैं जिसमें माइंड, बॉडी, इमोशंस, फीलिंग्स एंड इंटेलिजेंस के बीच किस तरह का तालमेल बनता है वह समझने का प्रयत्न करते हैं। और इसी तरह हमारा माइंड हैबिट्स किस तरह से बनाता है उस पर भी कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। और इन सभी में से एक ही बात बाहर निकल कर आती है जो हैबिट्स बनाने के लिए जिम्मेदार है, जिसको साइकोलॉजिस्ट ने 3R हैबिट्स फॉर्मूला कहा है। और इस फॉर्मूला की वजह से हमारा माइंड गुड एवं बैड हैबिट्स बनाता है। यह 3R फॉर्मूला कुछ इस तरह की है: रिमाइंडर, रूटीन और रिवॉर्ड। जब हम इन 3 बातों को बारंबार फॉलो करते हैं तो हमारे बिहेवियर में एक तरह की पैटर्न बनने लगती है और यही पैटर्न आगे चलकर हैबिट्स बनाती है। इस फॉर्मूला को हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक राज नाम का बंदा है जो स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन वह किस तरह से स्मोकिंग नाम की बैड हैबिट्स का शिकार बनता है वह हम देखते हैं। हैबिट्स बनाने के लिए एनवायरनमेंट एवं विल पावर बहुत ही सक्रिय तरीके से जवाबदार है। इस एनवायरनमेंट में हमारा फ्रेंड सर्कल, ऑफिस स्टाफ, फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है। अब राज इन सब में से कईयों के साथ इमोशनली एवं मेंटली कनेक्टेड होता है और यह लोग जो भी बर्ताव करते हैं उसे राज ऑब्जर्व करता है और कभी कभार राज उनके साथ बाहर घूमने भी जाता है। लेकिन जब स्मोकिंग की बात आती है तो राज मना कर देता है और ऐसा कई बार होने के बाद अब राज ओकेशनली स्मोकिंग करने लगता है और यहाँ से स्मोकिंग नाम की बैड हैबिट्स राज के लाइफ में एंट्री मारती है। लेकिन एक मिनट रुको, क्योंकि अभी बैड हैबिट्स बनी नहीं है, बस उसकी शुरुआत है। वह कैसे बनती है वह हम 3R फॉर्मूला में देखते हैं। पहला R रिमाइंडर या ट्रिगर। जब राज ओकेशनली अपने फ्रेंड्स को मिलता है तो बातों बातों में और अपने फ्रेंड्स के साथ मज़ा आता है, इसलिए स्मोकिंग करने लगता है। उसे लगता है कि ऐसे ओकेशनली स्मोकिंग करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन राज अभी अपने घर या फिर ऑफिस में स्मोकिंग नहीं कर रहा है। दूसरा R रूटीन। अब इस बात को बारंबार रिपीट करने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जब राज किसी दूसरे बंदे को स्मोकिंग करते हुए देखता है तो उसे भी इच्छा हो जाती है और वह कैसे भी करके अपनी ऑफिस में या फिर कभी कभार अपने घर के टेरेस पर स्मोकिंग करने लगता है। तीसरा R रिवॉर्ड। राज को शुरू में अपने फ्रेंड्स के साथ स्मोकिंग करना मजा आता था, लेकिन अब उसे फ्रेंड्स के बगैर भी स्मोकिंग की लत लग गई है और बिना फ्रेंड्स के उसे स्मोकिंग करना मजा आता है। इस तरह से इस फॉर्मूला को बारंबार रिपीट करने के बाद राज बैड हैबिट्स का शिकार बन जाता है और आगे चलकर राज को कॉन्शियसली यह भी मालूम नहीं रहता कि वह एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है और यह बैड हैबिट लूप साइकिल यूं ही चलती रहती है जब तक कि राज उसे अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर एवं इंटेलिजेंस से ब्रेक न कर दे। यानी कि आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और इसके साथ दोस्तों मेरा आपको सजेशन है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सफलता की इस रेस में हम साथ में दौड़ सकें। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो।